بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید ناظرین۔ آج آپ کے لیے میں انتہائی خوفناک، سنسنی خیز اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز سب سے پہلے ملیں۔ اسلم جلدی کرو، بہت دیر ہو گئی ہے، تم ہر روز دیر کر دیتے ہو۔ آج رات کے 10 بج چکے ہیں اور تم ابھی تک دکان پر براجمان ہو۔ اسلم کی موبائل شاپ کے اندر داخل ہوتے ہی شفیق کے منہ سے یہ الفاظ نکلے، آؤ شفیق یار، آؤ، بس تھوڑا سا کام باقی ہے۔ دن کو لائٹ نہیں ہوتی جس کی وجہ سے سارے کاروبار کا ستیہ ناش ہو گیا ہے۔ رات کو دیر تک کام کر کے کاروبار اپنی جگہ پر قائم رکھتا ہوں۔ شفیق اپنے آفس میں کام کرتا تھا اور اسلم کی اپنی موبائل شاپ تھی۔ دونوں عرصہ دراز سے روزانہ پیدل گھر تک اکٹھے سفر کیا کرتے تھے۔ شفیق سامنے لگے صوفے پر بیٹھ گیا اور اسلم کے آنے کے بعد تیزی سے ہاتھ چلا کر جلدی سامان سمیٹنے لگا تاکہ ہر ممکن حد تک گھر کی راہ اختیار کی جائے۔ اسلم یار، تمہیں پتہ ہے میری وائف لیٹ ہو جانے پر برا مناتی ہے، میں پھر تمہاری وجہ سے لیٹ ہو جاتا ہوں۔ شفیق نے اپنے دل کی بات اسلم کو بتائی۔ چلو یار نکلتے ہیں۔ اسلم کی آواز سنتے ہی شفیق صوفے پر کھڑا ہوا اور دونوں تیز قدموں سے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ شفیق اور اسلم گہرے دوست تھے، شروع سے ہی اکٹھے کام پر جایا کرتے تھے۔ شفیق کی شادی کو 5 سال ہو گئے تھے لیکن ابھی تک ان کی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ شفیق یار، یہاں تو گرمی ہے، میرے تو ہونٹ پیاس کے مارے خشک ہو رہے ہیں۔ اس نے کہا، ہاں یار واقعی یہاں تو بہت گرمی لگ رہی ہے، چلو سامنے نلکے پر چلتے ہیں۔ شفیق کے کہنے پر اسلم نے بھی ہاں میں ہاں ملائی۔ اتنے میں اسلم کے موبائل کی گھنٹی بجی۔ اس نے موبائل نکالا اور دیکھنے لگا۔ ابو کی کال ہے یار، تم ٹھیک کہتے ہو، ابو مجھے کتنی دفعے کہہ چکے ہیں کہ جلدی گھر آ جایا کرو، آج پھر لیٹ ہو گیا ہوں۔ ان دنوں تو میری شادی کی بات بھی چل رہی ہے، ابو سے وعدہ کر کے آیا تھا کہ آج جلدی آؤں گا۔ پانی کو رہنے دو، گھر چلتے ہیں۔ اسلم کی بات سن کر شفیق بھی تھوڑا پریشان ہو گیا۔ پھر وہ دونوں گھر کی طرف چل پڑے۔ ابھی وہ تھوڑی دور ہی گئے تھے کہ ایک نسوانی آواز نے انہیں چونکا دیا۔ یہ وہ آواز تھی جو کافی دنوں سے محلے کی باہر والی موجودہ مکان سے انہیں سنائی دے رہی تھی۔ دونوں ایک بار پھر حیرانی اور خوف سے بھری نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، جیسے کہہ رہے ہوں، یار آخر یہ کیا چیز ہے، آج اس بات کا پتہ چلا کر ہی رہیں گے۔ نہیں اسلم، گھر چلو، ہم لیٹ ہو گئے ہیں، شفیق نے کہا۔ پھر دونوں اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ اس بات کا فیصلہ بھی کر لیا کہ یہ راز کل کے دن پتہ چلا کر رہیں گے۔ دوسرے دن معمول کے مطابق صبح سویرے اسلم اور شفیق اپنے اپنے کام پر چلے گئے۔ رات کو وہ جلدی فارغ ہو گئے تھے۔ آج انہیں اس راز سے پردہ اٹھانا تھا جو کل سے ان کے دلوں میں تجسس کو ہوا دے رہا تھا۔ سارا دن شاید ان کے دل میں یہی بے چینی تھی۔ خیر، تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ چلتے چلتے اس جگہ پہنچ گئے۔ شفیق یار، آج تو کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی، نہ جانے کیا وجہ ہے، کل تو یہاں واضح کسی کے چیخنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ سلیم نے کہا، آ جاؤ دونوں، بہت انتظار ہے نا تم لوگوں کو۔ یہ آواز سن کر اسلم اور شفیق چونک گئے، خوف سے ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ آخر اسلم اور شفیق آواز کی سمت جانے لگے۔ ڈرتے اسلم نے دیکھا کہ اس مکان سے آواز آ رہی تھی جو ان سے چند قدم کی دوری پر واقع تھا۔ اسلم نے گھر کے دروازے پر دستک دی۔ تھوڑی دیر میں دروازہ کھل گیا۔ حیرت سے ان کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا کیونکہ سامنے کا منظر انتہائی خوبصورت تھا۔ سامنے کھڑی دوشیزہ جس کے بال کھلے ہوئے تھے مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی، آ جائیے، اندر تشریف لائیے، میں ہی وہ بد نصیب ہوں جو ہر روز آپ کو تنگ کرتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ اپنا دوپٹہ سٹ کرنے لگی۔ اسلم اور شفیق ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ انہیں لگ رہا تھا وہ کوئی حسین خواب دیکھ رہے ہیں۔ تم لوگ بیٹھو، میں تم لوگوں کے لیے کچھ پینے کو لاتی ہوں۔ وہ اتنا سا کہہ کر چلی گئی جبکہ اسلم اور شفیق ایک دوسرے کا منہ دیکھتے ہوئے ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ آخر یہ لڑکی اس بیابان میں اس گھر کے اندر کر کیا رہی ہے۔ ابھی وہ یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ وہ لڑکی واپس آ گئی۔ وہ جی، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ اسلم نے اس کی طرف چونک کر دیکھا۔ آپ مجھے بہت اچھے لگتے ہو، روزانہ آپ کو یہاں سے جاتے ہوئے دیکھتی ہوں۔ کچھ دنوں سے اتنی بے قرار ہوں کہ بتا نہیں سکتی۔ آپ مجھے دل و جان سے اچھے لگتے ہو،
बहुत बार आपको आवाज़ देने की कोशिश की, लेकिन फिर सोचा कि मेरा और आपका मिलन नहीं। आज मैं हौसला करके आपको बताना चाहती हूँ कि मेरा ताल्लुक़ इंसानों की दुनिया से नहीं है। आप लोग मुझे परी कह सकते हैं। लड़की ने धीरे से आह भरी और फिर असलम की तरफ बढ़ने लगी। असलम उसकी आंखों में शैतानियत देख चुका था। वो यूं देख रही थी जैसे उसे कच्चा खा जाएगी। इससे पहले कि वो दोनों उठकर भागते, लड़की ने असलम और शफीक का रास्ता रोक लिया। ये तुम क्या कर रही हो? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। शर्म? उसने कहकहा लगाया और बोली, मैं तुम लोगों को तब तक जाने नहीं दूंगी जब तक तुम लोग मेरा मकसद पूरा नहीं कर लेते। लड़की के चेहरे पर अजीब सी हंसी थी, गोया वो उनका खून पीना चाहती हो। फिर वो अचानक खौफनाक कहकहे लगाने लगी। तभी असलम के जहन में ख्याल आया। उसने ऊंची ऊंची आवाज़ में आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। फिर दोनों ही तेज़ी से बाहर की तरफ भागने लगे। दोनों भागने में कामयाब भी हो गए। भागते भागते थकावट के मारे उनका बुरा हाल हो गया। घर आकर इन दोनों से ये बात छुपाई नहीं गई, क्योंकि उस औरत ने उनके घर तक उनका पीछा किया था। असलम और शफीक को लग रहा था कि वो उन्हें इस दुनिया से उठाकर कहीं और ले जाएगी। जो पहले इन बातों पर यकीन न करते थे, मगर अब तो लगता था कि उनकी जान को भी ख़तरा है। असलम रात को सोता तो उसे उस लड़की के खौफनाक कहकहे याद आते, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुम दुनिया के जिस कोने में चले जाओ। तभी असलम के बाबा ने बताया कि मैं एक ऐसे बुज़ुर्ग को जानता हूँ जो इस मसले का हल कर सकते हैं। असलम अपने बाप के मुंह से ये बात सुनकर काफ़ी पुरुम्मीद हो गया था। रात उसने अपने कमरे में टहलते हुए गुजारी थी। सुबह होते ही उसने शफीक को भी कॉल की, उसे सारी बात तफसील से बताई और कहा कि तुम भी आ जाओ, साया तो तुम पर भी होगा, हम अब्बू के साथ बुज़ुर्ग के पास चलते हैं। वहाँ पहुंचकर असलम ने सारी बात बुज़ुर्ग को भी बताई। इन्होंने बहुत तवज्जो से असलम और शफीक की कहानी सुनी। बेटा, मैं जानता हूँ और अभी इसका हल आपको बताता हूँ, गौर से सुनो मेरी बात। देखो बेटा, वो एक ऐसी मखलूक है जिसे नौजवान मर्दों के खून का नशा पड़ चुका है। वो लड़कों को अपना हुस्न दिखाकर अपनी तरफ माइल करती है, फिर उनकी रगों के खून से अपनी प्यास बुझाती है। तुम्हारे साथ भी वो ऐसा ही करना चाहती है, लेकिन अब किसी को अपनी कुर्बानी तो देना होगी। झूठी मोहब्बत को ढोंग रचाना होगा, उसे इस बात पर कायल करना होगा कि वो उससे शादी करना चाहता है। ऐसा करने से वो यहाँ से अपनी दुनिया में चली जाएगी। बाबा की बातें सुनकर वो बहुत हैरान हुए। बाबा, आपको पता है हम इस परेशानी की वजह से आपके पास आए हैं और आप हमें वो बात बता रहे हैं जो नामुमकिन है। बाबा को उनकी बातें नागवार गुजरी। बेटा, मैं जो कह रहा हूँ वो बात आपकी समझ से बाहर है, बस जो कहता हूँ वही करो। तुम भले उससे बात करोगे, उसे अपनी जानिब माइल करोगे, लेकिन मैं तुम्हें एक तावीज़ दूंगा। तुम उसके पास जा सकते हो, वो तुम्हें मार नहीं सकती, बल्कि तुम उस पर हावी हो जाओगे और उसको यहाँ से जाने पर मजबूर करोगे। बाबा जी की बातें सुनकर वो दोनों हैरान हो रहे थे। इन्होंने देखा कि बाबा जी काफ़ी ज़्यादा संजीदा तबीयत के लग रहे थे। उनकी कोई बात झूठी कैसे हो सकती थी? फिर उनके अमल के बारे में मशहूर था कि वो जिन्नू भूतों का इलाज शर्तिया करते हैं। बाबा जी से मिलकर असलम के बाप ने सोचा कि क्यों न ये बात पूरे मोहल्ले को तफसील से बताई जाए। ऐसा ना हो कि असलम और शफीक जैसे बाकी लड़के भी उस लड़की के जाल में आ जाएं। और फिर सभी घरों तक जब ये बात पहुंची तो मोहल्ले के लोग भी हैरान रह गए। उसमें से एक बुज़ुर्ग बोले, असलम बेटा, तुम उस लड़की से शादी कर लो, मैं सब जान गया हूँ। दरअसल आजकल वो तुम्हारे ख्वाब देख रही है, तुम्हारा ही चेहरा उसकी नज़रों के सामने घूम रहा है, तुम्हारे अलावा और उसे कोई दिखाई नहीं देता। अब अगर वो तुमसे शादी के चक्कर में आ जाएगी तो फिर हम उसे फतह कर सकेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि फ़िलहाल वो किसी और के जाल में आ सकती है। बेटा, हम तुम्हारे साथ उस मकान में जाएंगे जहाँ वो रहती है, ताकि उससे बात कर सकें कि वो चाहती क्या है। इतना कहकर बाबा जी असलम के साथ उस मकान की तरफ रवाना हो गए। कुछ ही देर में वो उस मकान में जा पहुँचे। मकान में दाखिल हुए तो अंदर का मंजर देखकर उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। मकान अंदर से किसी महल से कम दिखाई न देता था। असलम और शफीक भी हैरान रह गए, क्योंकि जो कल शाम इन्होंने देखा था अब सब बदल गया था। लगता था कि वो किसी दूसरी दुनिया में आ गए हों। हर तरफ खूबसूरत कुर्सियाँ और सोफ़े लगे हुए थे। असलम तो ये माहौल देखकर एक अलग ही दुनिया में खो गया था। अभी वो लोग कुछ सोच ही रहे थे
कि उनको वो लड़की एक तरफ से चलती हुई उनकी तरफ आती दिखाई दी। वो गज़ब की खूबसूरत हो, उसके हुस्न के आगे कोई अल्फाज नहीं ठहर सकते थे। खूबसूरती जैसे उसके अंदर समा गई थी। उसका रंग दूध की तरह सफ़ेद था, गुलाबी गाल और रुखसार, सुर्ख खूबसूरत होंठ। एक लम्हे को असलम को भी झटका सा लगा कि वो कल क्या था और आज क्या बन गया है। इतने लोगों की मौजूदगी में ही उस लड़की की नज़रें असलम पर टिकी हुई थीं। वो उसे देखे जा रही थी। लोग समझ रहे थे कि इस लड़की को सिर्फ़ और सिर्फ असलम की ज़रूरत है। असलम उसे देखकर शर्माए जा रहा था। आ गए मेरी जान, वो मुस्कुराते हुए बोली। उसकी आवाज़ ऐसी थी जैसे फूल झड़ रहे हों। हाँ, आ गया हूँ, असलम ने डरे हुए अंदाज में कहा। मैं जानती हूँ तुम ज़रूर आओगे। तुम वो ख्वाहिश लेकर आए हो जो मैं चाहती हूँ। इतने लोगों की मौजूदगी में तुम मुझसे जो कहने आए हो वो कहो, मैं तुम्हारी ज़ुबानी सुनना चाहता हूँ। तभी असलम ने हिम्मत करके कहा, ए खूबसूरत लड़की, मैं तुझसे शादी करना चाहता हूँ। लड़की ये सुनकर फूले न समाई और मुस्कुराने लगी। उसकी तो जैसे खुशी की इंतहा न रही हो। वाकई असलम? उसने बेयकीनी से कहा। हाँ वाकई, इस बात के गवाह ये सब लोग हैं, असलम ने वजाहत देते हुए कहा। लड़की ने अपना खूबसूरत हाथ उसकी तरफ थमा दिया। इसका मतलब था कि तुम मुझसे शादी करने पर रज़ामंद हो? हाँ, मैं यही तो चाहती हूँ कि मेरी तुमसे शादी हो। इसके अलावा मैं कुछ नहीं चाहती। जो तुम्हारे दिल में इसके आगे का खौफ है उसे ख़त्म कर दो। मैं जानती हूँ तुम्हारे अंदर बहुत खौफ है कि मैं तुमसे शादी के बाद तुम्हारा खून पीऊँगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम मुझे दिल से पसंद आए हो, और जो चीज़ दिल से पसंद हो मैं उसका खून नहीं पीती, बल्कि उससे प्यार करती हूँ, और इंतहा की हद तक करती हूँ। लोग उसकी बातें सुनकर हैरान हो रहे थे कि वो किसी से भी डर नहीं रही। वो असलम से ऐसे बातें कर रही थी जैसे उसे सदियों से जानती हो। असलम को भी जैसे आज उससे प्यार हो गया था। उसके दिल में असलम के लिए जगह बन गई थी, क्योंकि जो उसने उसके बारे में सोचा था, आज इस लड़की ने उसकी बातों की नफ़ी कर दी थी कि वो उसका खून नहीं करना चाहती, बल्कि उससे प्यार करती है और प्यार में सब कर सकती है। तमाम लोगों की मौजूदगी में इन दोनों का निकाह हुआ। ये बात लम्हों में आम हो गई कि असलम का निकाह एक ऐसी लड़की से हुआ है जो इंसानों में से नहीं बल्कि परिस्तान की दुनिया से है। इंसान की अकल इस हकीकत को तस्लीम करने से कासिर थी कि आजकल के जदीद दौर में भी ऐसे वाक़यात हो सकते हैं, लेकिन इसके साथ इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता कि जिन्नात आजकल के ज़माने में भी मौजूद हैं। शादी की पहली रात असलम जैसे ही रूम में गया, रूम के अंदर से आने वाली महक ने असलम का दिल मोह लिया। असलम पर एक अजीब सा नशा और सुरूर छाने लगा, लेकिन वो बेहोश होते होते बचा था, क्योंकि वो हुस्न जिसका शिकार होकर वो उसकी तरफ माइल हुआ था वो बहुत फीका दिखाई दे रहा था। आज तो वो तो ऐसे दिखाई दे रहा था जैसे चांद ज़मीन पर उतर आया हो। उसके जिस्म से उठने वाली खुशबू दुनिया की तमाम खुशबुओं से बेहतर और मुअत्तर कर देने वाली थी। वो अपनी किस्मत पर रश्क करने लगा, और वो रश्क करता भी कैसे ना। चांद उसके लिए ज़मीन पर उतर आया था। वो उसके पास जा बैठा। आपने मुझे दुनिया जहाँ की खुशियाँ दे दी हैं, जिसके लिए मैं आपका जितना भी शुक्रिया अदा करूँ कम है। आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूल सकती। मैं आपकी दुनिया में इसलिए आई हूँ देख सकूं कि इंसानों की दुनिया में वाकई इंसानियत मौजूद है या नहीं। लेकिन असलम, आज इंसानों की दुनिया में तुम्हें देखकर मेरा दिल बहुत खुश हुआ है। आप बहुत अच्छे इंसान हैं। उसकी बातें असलम के दिल में उतरती जा रही थीं। मैं आपको इस एहसान के बदले बहुत कुछ दे जाऊंगी। आप ज़िंदगी भर कभी परेशान न होंगे। आज की रात मैं आपकी हूँ, सुबह वापस चली जाऊंगी, क्योंकि जिस मकसद के लिए मैं आई थी वो पूरा हो गया है। इंसान से शादी की ख्वाहिश लेकर आई थी और वो पूरी हो गई है। मुझे तुम्हारे जिस्म की ख्वाहिश नहीं थी, ना ही तुम्हें थी। अगर तुम्हें होती तो उस रोज़ जब तुम मेरे घर में आए थे मेरे हुस्न में खो जाते, लेकिन फिर मेरे कहने के बावजूद भी तुम वहाँ से भाग खड़े हुए। मुझे तुम्हारी यही अदा दिल को भा गई। मैं तुम्हारे और करीब हो गई। इंसानों से मेरी मोहब्बत बढ़ गई। तुम लाजवाब इंसान हो, वाकई सच्ची मोहब्बत के काबिल हो। असलम उसकी बातें गौर से सुनता रहा। उसको यकीन नहीं आ रहा था कि एक हसीना उसके प्यार में पागल हो गई, लेकिन उसे ये भी था कि वो सुबह चली जाएगी, और ये दुख उसके दिल में जगह बना रहा था। उसको मोहब्बत हो गई थी। वो चाहता था कि परी उसके साथ हमेशा रहे, लेकिन जब सुबह हुई
تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسے چھوڑ کر جا چکی تھی۔ اسلم ان خوشبوؤں کو محسوس کرنے لگا جو پری کے وجود سے اٹھ رہی تھیں۔ جاتے جاتے وہ اسے بہت کچھ دے کر گئی تھی، اتنا کچھ کہ پوری زندگی وہ عیش سے گزار سکتا تھا۔ اسلم کو یہ سب ایک خواب دکھائی دیتا ہے۔ وہ آج بھی سوچتا ہے کہ کیا واقعی کوئی پری اس کی زندگی میں آئی تھی، لیکن اس کی دی ہوئی دولت دیکھ کر اسے یقین ہو جاتا ہے کہ ہاں، وہ اس کی زندگی میں آئی تھی اور اسے یہ سب کچھ دے کر گئی تھی جس کی اس نے کبھی تمنا بھی نہ کی تھی۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔